Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज ही के दिन 23 जून 1985 को कनाडा की तारीख में, कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिज्म का एक्ट हुआ और उस टेररिज्म में 2 एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इन्वॉल्व थी। एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आयरलैंड के ऊपर बम धमाके से तबाह हुई और 329 लोग उसमें शहीद हो गए और 2 लोग नारिटा एयरपोर्ट जापान में एक दूसरी फ़्लाइट पर मारे गए। अगरचे वो फ़्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं की थी, उससे पहले ही बम फट गया और यूं कनाडा की हिस्ट्री में ये तारीख दिन लिखा गया और उस तारीख दिन में कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिज्म का वाक़या हुआ। टैग टीवी हर साल एयर इंडिया मेमोरियल की साइट पे जाके ये शो आपको दिखाया करता था। जो मेमोरियल की वहाँ पर सर्विसेज हुआ करती थी, जहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते थे। इस बार कोविड-19 की दहशतगर्दी की वजह से हम वो नहीं दिखा रहे। मैं इसको भी कोविड-19 को भी इस वायरस की दहशतगर्दी करार देता हूँ, चाहे इसके पीछे किसी की नेग्लिजेंस हो। जिसकी भी नेग्लिजेंस है वक्त आने पर साबित होगा, वो भी दहशतगर्दी होगी। बहरहाल एयर इंडिया बॉम्बिंग की दहशतगर्दी कनाडा की हिस्ट्री पर एक बहुत ही स्याह दाग है। आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उस अलमनाक वाक़े को, उस अलमनाक दिन को, उस तारीख दिन को याद किया। पहले हम प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ये मैसेज देखते और सुनते हैं। Hello everyone, bonjour à tous. 35 years ago, a bomb exploded on Air India Flight 182. 329 people were killed, including 280 Canadians. This terrorist act left our country in shock and forever changed the lives of so many people. It remains the deadliest terrorist attack in Canadian history. Unfortunately, we've lost many others to acts of terrorism since June 23, 1985. Those who commit these heinous acts seek to divide us, but time after time, they fail. Les valeurs canadiennes d'inclusion, de compassion et d'égalité sont plus fortes que la peur et la haine. Aujourd'hui, on se souvient des victimes de cet attentat et de chaque Canadien qui a perdu la vie dans un acte terroriste. Et même si on doit respecter la distanciation physique en ce moment, on peut quand même honorer la mémoire des victimes de ces attentats insensés et être solidaire de leurs familles et de leurs proches. I offer my deepest condolences to all Canadians who've lost a loved one to terrorism. You're in my thoughts today. Thank you, Prime Minister. You said very well. आपने जो कहा कि कैनेडियंस इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से तकसीम नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं, बिलाशुबा तकसीम नहीं होंगे। और जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं, चाहे टेररिज्म की कोई भी शक्ल हो, कोई भी सूरत हो, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी कैनेडियन हिस्ट्री में उनको हम फातेह नहीं बनने देंगे। वो हमेशा नाकाम रहेंगे और वो हमेशा चेज डाउन रहेंगे, ताकि कनाडा की हिस्ट्री में ये लिखा जाए कि इस मुल्क में टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले और उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडोर्स करने वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसी दिन के मौका पर RCM की कमिश्नर ने जो पैगाम दिया, वो भी मैं चाहता हूँ आप देखें और सुनें। Today, on the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism, we commemorate
the 35th anniversary of the Air India Flight 182 bombing. This remains the deadliest terrorist attack in Canadian history, killing everyone on board, including 280 Canadians. It is with a heavy heart that we take today to remember those lost to this senseless act of violence. Over the past 3.5 decades, we've made and maintained many relationships with the families of victims and watched with admiration as they've kept the memories of victims alive. Some were just children when this attack happened and have now become unwavering advocates for their lost loved ones. Although we can't gather in person to remember and honor those lost, know that you do not grieve alone. The RCMP continues its efforts to seek justice to this day. On behalf of all RCMP, I extend our deepest condolences and offer our continued support to all Canadians who have lost loved ones to acts of terrorism. We grieve together. थैंक यू कमिश्नर RCMP। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी उस कमिटमेंट के भी। सो नाइस ऑफ यू कि आपने हम कैनेडियंस को आज ये एश्योरेंस दी कि हम एयर इंडिया बॉम्बिंग के विक्टिम्स को और टेररिस्टों को दोनों को नहीं भूल सकते, और कनाडा को हमें हमेशा के लिए पाक रखना है इस तरह के टेररिस्ट अज़ाइम रखने वाले लोगों से भी और उनकी एक्टिविटी से भी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वैंकूवर में रहने वाले एक जर्नलिस्ट मिस्टर गुरप्रीत सिंह आज एक आर्टिकल लिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके आर्टिकल का टॉपिक है कि इंडिया शुड स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर एयर इंडिया विक्टिम्स। यह आर्टिकल मेरे हाथ में है और इसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये जो टेररिज्म का एक्ट था वो भी मानते हैं कि ये एक टेररिज्म का एक्ट है, मगर इसको मेरी राय में, मेरी हम्बल ओपिनियन में, वो अपने आर्टिकल में जैसे कुछ डाइल्यूट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया, जैसे वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया खुद रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के एक्ट्स का। वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो इस वक्त की सरकार है नरेंद्र मोदी, वो असल में इस बात को याद करके या इस बात की याद दहानी करवा के वो कनाडा में मुसलमानों और सिखों के बीच तल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। अभी मैं इस पर अपनी कमेंट्री करूँगा जो उन्होंने बात की, लेकिन इससे पहले मैं उसके आर्टिकल का जो एसेंस है वो आपके सामने पेश करता हूँ। उनका ये कहना है कि इस में 3 नाम थे बड़े जो इस टेररिस्ट एक्ट में जिनको चार्ज करने के लिए कोर्ट में पेश किया गया, और उसमें से एक जो नाम था वो अल्टीमेटली कन्विक्ट हुआ, इंद्रजीत सिंह रियात का, वो हम सब जानते हैं। और उसमें 2 नाम और थे, मिस्टर मलिक का और मिस्टर बागरी का। वो ये कहते हैं कि इनको कैनेडियन कोर्ट ने इनफ एविडेंसेस ना होने के नाते छोड़ दिया था। तो उनका ये भी कहना है कि हर साल ये गेट टुगेदर होते थे एयर इंडिया बॉम्बिंग को याद करने के लिए। इस साल कोविड-19 की वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, तो भारतीय सरकार इसको अब और तरीके से, एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। आप ये आर्टिकल रेडिकल देसी नामी एक वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो उसमें मिस्टर गुरप्रीत सिंह ने ये भी कहा कि मोदी himself nominated a controversial female Hindu to run for the office in last year's general election, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने उनको भी कोट किया उसमें। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लीडर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर गुरप्रीत सिंह से
मैं खुद मुस्लिम फेथ से हूँ और मैं दावे से कहता हूँ कि भारत का कोई मुस्लिम फेथ वाला और कोई सिख भारत का वो हिंदू सिविलाइजेशन से बाहर नहीं है। अगर बाहर है तो मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी, आप साबित कर दें कि आप उस सिविलाइजेशन, उस लड़ी, उस हेरिटेज, उस फेथ क्लब से बाहर हैं। वेरी रिस्पेक्टेबल बाबा गुरु नानक जी, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, ना किसी गुरु ने ऐसी बात की। आप किस तरह से अपने आप को हिंदू धर्म से जुदा करते हैं, ये मेरी बात समझ से बाहर है। फिर आप क्यों इतने सेलेक्टिव हैं? आप तो दूसरों पे सेलेक्टिव होने का दावा करते हैं, लेकिन आप क्यों इतने सिलेक्टिव हैं गुरप्रीत सिंह भाई? आप, मैं हिंदू सिविलाइजेशन से बाहर नहीं हैं। मैं मुस्लिम फेथ से हूं, आप सिख फेथ से हैं। अगर मैं मुस्लिम फेथ से होने के बावजूद खुद को कह रहा हूं कि मैं हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, तो आप एक सिख फेथ से तल्लक रखने वाले कह ही नहीं सकते कि यू आर नॉट फ्रॉम हिंदू हेरिटेज। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप अपने पुरखों को डिनाई करेंगे, अपने गुरुओं को डिनाई करेंगे। फिर ये मोदी जी का कैसे एजेंडा हो गया? आपने खुद भी अपने इस आर्टिकल में कहा है कि असल में ये तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, बिलाशुबा हुआ था। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहते हैं कि ये कांग्रेसियों की हरकत थी, वो एक पॉलिटिकल शरूट चाल खेल रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, मोदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब के सब सिखों के इतने बड़े दोस्त हैं। ये समझते हैं कि हमारे जो पंजाबी ग्रेट सिख हैं वो सेवियर हैं भारत के। मैं भी समझता हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, मुस्लिम फेथ का हूँ। मैं पार्टीशन के हक़ में नहीं हूँ। आपको भी गुरप्रीत सिंह साहब नहीं होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। फिर जब आप ये बात कहते हैं कि कनाडा में सिखों और मुसलमानों के बीच बढ़ती दोस्ती खटक रही है भारत की सरकार की नज़र में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किन मुसलमानों की आप बात करते हैं? आप हम पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करते हैं। कनाडा में जो मुसलमान बसते हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान ही नहीं बसते। हम कनाडा में बसने वाले मुसलमानों का हार्डली कोई 1/4 होंगे, बाकी 3/4 मिडल ईस्टर्न, टर्किश, अदर कम्युनिटी से हैं। चाइनीज़ हैं जिन पे चाइना का जुल्म हो रहा है। बहुत मुल्कों से आके बसने वाले मुसलमान यहाँ बसते हैं। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 3/4 मुस्लिम्स आर नॉट ऑफ पाकिस्तानी पंजाबी ओरिजिन हियर इन कनाडा। उनको तो पता भी नहीं है कि ये सिखों और पाकिस्तानी मुसलमानों का आपस में क्या रिश्ता है। आप इतने नाइव क्यों हैं गुरप्रीत सिंह साहब? आप फिर खुल के लिखें ना कि पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स और सिख पंजाबियों के बीच बनते हुए रिश्तों को वो पसंद नहीं करते। आप सारे मुसलमानों को क्यों लिख रहे हैं? चलिए, उस पर भी मैं बहस नहीं करता। आप कहते हैं कि भारतीय सरकार की आंख में ये एक रोड़ा सा अटक रहा है मुसलमानों और सिखों के तल्लुकात के बीच का। 1984 की ट्रेजेडी मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मगर उससे भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी 1947 की है, पाकिस्तान का बनना। और मैं ये खुल के कहता हूँ, मिस्टर जिन्ना की बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था, और वो उस वक्त अंग्रेज़ साम्राज्य के चंगुल में थे। और पाकिस्तान बनने का मतलब ये था, सबसे ज़्यादा जानें गंवाई मेरे सिख बहनों और भाइयों ने, मेरे सिख बहनों और भाइयों के पुरखों ने। और जब खालिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए कुछ मैं पंजाबी बहन भाई कनाडा में देखता हूँ जो जिन्ना की पिक्चर के नीचे खड़े होके उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं, वो जिन्होंने
पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पंजाब के 2 टुकड़े किए। मैं पूछता हूं गुरप्रीत सिंह साहब, पूछ लीजिए किसी पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान से, अगर वो औरंगजेब के खिलाफ बोलता है तो आप उसके साथ चाय पीजिए। अगर वो औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलता तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, दूसरों से भी कहता हूँ जो उनकी हमायत करते हैं, कि भैया फिर आप थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। मैं कहना तो ये चाहता हूँ थोड़ी सी शर्म कर लें, लेकिन चलिए नरम वर्ड्स में ये कहता हूँ, सॉफ्ट वर्ड्स में ये कहता हूँ, थोड़ा सा ख्याल कर लें। मैंने कई बार अपने शोज़ में यहाँ पर एक खालिस्तानी दोस्त का, मैं दोस्त कहूँगा, मेरे वो मिलने वाले हैं मगर मैं उनके विचारों से एग्री नहीं करता, हंसरा जी ने जब कनाडा के पार्लियामेंट में मिस्टर जिन्ना की पिक्चर के नीचे खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तानियों और सिखों का प्यार कितना बढ़ रहा है। मुझे प्यार बढ़ने में कोई नहीं है, आप मेरे से भी प्यार कीजिए, मैं भी पाकिस्तानी पंजाबी हूँ, लेकिन जिन्ना की पिक्चर के नीचे खड़े होकर आप ये बात करते हैं। आप भारत के साथ डिसएग्री कर लीजिए, दैट्स फाइन, वो आपका राइट है, आपकी सोच का अंदाज है, मगर औरंगजेब के मानने वालों को, जिन्ना जिसने पंजाब को तकसीम किया है, उसके मानने वालों को आप अपने आर्टिकल में ये कहें कि हमारा प्यार बढ़ रहा है, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। देख लीजिए गुरप्रीत साहब, अगर आप ये मेरा शो देख रहे हैं तो ये ज़रा हंसरा साहब की एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन बहुत सारे वीडियो क्लिप दिखा दूंगा। एक बार फिर मेरा धन्यवाद करदा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे दे इस मौके के उत्ते सानू 2 भाईचारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया। सो तीसरा जो सानू गुलाम बना के रखना चाहता वो देख लवे कि वी हैव जॉइंड हैंड्स। Canadian Sikh community is much more closer to Pakistan than any other country in that world. So एक बार फिर मैं तुहानू एक स्टेटलेस नेशन का नुमाइंदा होने के नाते कहना चाहना, हैप्पी पाकिस्तान डे। तो मैं आस करदा कि एक दिन तुसी भी सानू हैप्पी खालिस्तान, माफ करना, खाली थामा डे जरूर कह सकते। इसी दिन के मौका पर भारत के हाई कमिश्नर टू कनाडा जनाब अजय बिसारिया जी ने जो अपना वीडियो मैसेज रिलीज किया, वो भी मैं चाहता हूं कि आप देखें और सुनें। This year marks the 35th anniversary of the crash of Air India Flight 182 that led to the loss of 329 innocent lives. This was a horrific incident which shook the world's conscience. It is with a sense of deep pain and sorrow that I join the families and friends of the victims in paying my homage to all those who fell to this most barbaric act of terrorism. The bombing of the Air India flight resulted in the killing of 268 Canadian citizens, 27 British citizens, and 24 Indian citizens. The bombings were the result of a conspiracy conceived, planned, and executed in Canada. Most of its victims were Canadians. The bombing remains the worst encounter with terrorism Canada has experienced, one of the worst in the world. This was a Canadian tragedy. This was a British tragedy. This was an Irish tragedy. This was an Indian tragedy. It was a global tragedy. No religion, faith, or cause can justify such violence or inhumanity. On this solemn occasion, we must rededicate ourselves to fighting and eliminating terrorism with determination and joint action. Thank you, Mr. High Commissioner Ajay Bisaria ji. You said very well कि ये जो ट्रेजिडी है ये दुनिया भर के लिए ट्रेजिडी है। इसमें कैनेडियंस भी उस टेररिज्म का शिकार हुए, अमेरिकन्स भी, आयरिश भी, ब्रिट्स भी, यूं पूरी इंसानियत इस टेररिज्म का टारगेट बनी। इसी दिन के मौका पर
कनाडा में इंडिया की कौंसल जनरल टू टोरंटो मिस अपूर्वा श्रीवास्तवा कोविड-19 के ज़माने में इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई गैदरिंग ना हो, एयर इंडिया बॉम्बिंग मेमोरियल साइट पे वो गईं और उन्होंने वहाँ पर जाकर ट्रिब्यूट भी पेश किया और अपने वीडियो मैसेज में जो उन्होंने खुलकर बात की वो भी आप देखिए और सुनिए। This year marks the 35th anniversary of the bombing of Air India Flight 182 that led to the loss of 329 innocent lives, including 268 Canadian citizens, 27 British citizens and 24 Indian nationals. This was a despicable act targeting innocent civilians that deeply shook the conscience of humanity. It is with a great sense of deep pain and sorrow that I join the families and friends in paying my homage to all those who fell victim in this most barbarous act of terrorism. There can be no justification for such reprehensible and vile acts of terror. On this solemn occasion, we must rededicate ourselves to working together to fight and eliminate terrorism with solemn resolve. As Canadian, I must thank to Prime Minister Justin Trudeau, RCMP Commissioner, India's High Commissioner to Canada, India's Consul General to Toronto कि कोविड-19 के इन मुश्किल दिनों में भी उन्होंने उस ख़तरनाक वाक़े को नहीं भूला। उन्होंने उस ट्रेजेडी की याद दिलाई और इस ट्रेजेडी को याद करने का ये फ़ायदा है कि हम इस तरह की ट्रेजेडी से बच सकें, इस तरह के माइंडसेट से बच सकें। मैं RCMP की कमिश्नर का भी ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एश्योरेंस दी कैनेडियंस को, हम कैनेडियंस को बताया कि ये वाक़या RCMP के लिए और कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना बड़ा वाक़या था और इस तरह के वाक़या को ना होने देने की एश्योरेंस जो RCMP कर रही है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और सिर्फ ये उनका फ़र्ज़ नहीं, कैनेडियन पॉलिटिशियंस का फ़र्ज़ नहीं, ये हम सब का, हर कैनेडियन का फ़र्ज़ है कि वो निगाह रखे कि किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी, किसी किस्म का टेररिस्ट माइंडसेट इस मुल्क में पनप ना पाए, क्योंकि ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। अब हम याद करते हैं चंद उन विक्टिम्स की बातों को जिन्होंने इस वाक़े को किस तरह महसूस कर रखा है, 35 बरसों से वो नहीं भूले। एक ऐसे ही विक्टिम सुशील गुप्ता जी हैं जो एयर इंडिया बॉम्बिंग विक्टिम्स जो एसोसिएशन है उसको भी लीड कर रहे हैं। उनका वीडियो मैसेज देखिए और सुनिए। Hello everyone, my name is Sushil Gupta. I lost my mother in the bombing of Air India Flight 182. 35 years ago, on June 23rd, 1985, 2 bombs built by terrorists in Canada exploded, killing 331 innocent people. 329 mostly Canadian citizens were blown out of the sky over the Atlantic. At almost the same time, 2 Japanese citizens were killed when the second bomb exploded in Tokyo's Narita airport. Citizens of Japan, India, the United States, and also the United Kingdom died in this tragedy. But first and foremost, this was a Canadian tragedy. 86 of those killed were children under the age of 12. This was a tragedy committed by cowards, as terrorists' acts are. 35 years may seem like a long time, but to those of us who lost a mother, as I did, a father, a sibling, a child, or their whole family, it sometimes feels just like yesterday. We will never let go of those memories. आज के दिन कनाडा के पॉलिटिशियंस, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ और एयर इंडिया बॉम्बिंग के विक्टिम्स, उनकी फैमिली मेंबर्स, चूँकि वो फैमिली मेंबर्स जिनके अजीज़ रिश्तेदार एयर इंडिया बॉम्बिंग में अपनी जान खो बैठे, वो भी एक्चुअली विक्टिम है और वो किसी तौर पर भी कम विक्टिम नहीं है जो लोग उस हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे। मैं ये कहूँगा कि सारा कनाडा विक्टिम है
इस टेररिज्म एक्ट का और इस तरह के किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी का, और हम सब कैनेडियंस विक्टिम हैं। इस मौका पर ऑटवा के मेयर मिस्टर वॉटसन क्या कहते हैं इस ट्रेजेडी के मौका पर, इस ट्रेजेडी को याद करते हुए 35 बरस गुजर जाने के बाद आज के दिन ऑटवा के मेयर किस तरह महसूस करते हैं, उनकी ज़ुबानी देखिए और सुनिए। Hello, my name is Jim Watson, Mayor of the City of Ottawa. June 23rd, 2020 marks the 35th anniversary of the terrorist explosion aboard Air India Flight 182. All 329 passengers and crew were killed. Most of the travelers were Canadians. 82 were children under the age of 13, children going to visit grandparents, women and men of all ages, flight attendants and pilots. Too many tragically died. Up until the September 11th attacks, the Air India bombing tragedy was the deadliest act of terrorism against the travelling public. The Air India bombing remains the deadliest terrorist attack in Canadian history. Each year, family members, friends, colleagues and others gather to remember the victims. Mourning the loss of a loved one can span throughout generations. To everyone who is remembering those who were lost forever, I want you to know that I haven't forgotten. I wish you all peace, strength and blessings. Take care and be well. और यहाँ ऑन्टेरियो में एमपीपी क्रिस्टीन होगार्थी कैसे महसूस करती हैं उस दर्द को आज 35 बरस बाद भी मैं चाहता हूँ कि उनका वीडियो मैसेज भी हम देखें और सुनें। Hello everyone, I'm Christine Hogarth, the MPP in Etobicoke Lakeshore, and I am honored to participate virtually in the 35th memorial service of the terror attack on Air India Flight 182 to commemorate the 329 individuals, including the 268 Canadians who lost their lives on June 23, 1985, due to this horrific act of terrorism. This despicable act of terror left families and friends grieving the loss of loved ones and shook our country to its core. This is a Canadian tragedy, and as we all know that this day has been declared as a National Day of Remembrance for victims of terrorism. My heart and prayers go out to the family and friends, and we will always remember the victims. The 4 memorials across Canada will forever stand as a reminder of the innocent lives lost during this very sad chapter in our shared history. On behalf of the Government of Ontario, I extend my condolences to the Canadians who have lost loved ones to this terrorist act. They will always be remembered. और इसी मौका पर एक और एमपीपी जेम्स मेलूनी भी अपनी कैफियत का इजहार आज के दिन करते हैं, उनका वीडियो भी देखिए और सुनिए। Good day everybody, here we are on June 23rd, which is the day of national remembrance for victims of terrorism. It's not a day that any of us ever want to have to recognize, but it's one that we must recognize. It's ever so more difficult this year because we can't do it in person. I'm standing here at the Air India Memorial in Humber Bay Park, where every year we would gather and remember the 329 people who were tragically killed on June 23rd, 1985. It's hard to believe it's been 35 years since that tragic event. But we must remember all of the victims and the families of those victims every year because it was an act of hate, it was an act of terrorism. And if we don't remember and if we don't step up, it could happen again, and we must make sure that doesn't. So I just want to reach out to you today as best I can in the circumstances and say we're thinking about you, and it's important that we are all thinking about this on this day, June 23rd. Thank you. आज के दिन को एक और विक्टिम फैमिली के रुकन जो आज भी दुख से इस दिन को याद करते हैं, क्योंकि ये तारीख दिन भूला नहीं जा सकता। सिर्फ कनाडा की हिस्ट्री का ही ये तारीख दिन नहीं, बल्कि ये इंसानियत की तारीख का भी एक तारीख दिन है। एक ऐसे ही विक्टिम डॉक्टर अनंत रामन जी क्या कहते हैं, देखिए और सुनिए। 35 years have gone by, but the painfully happy memories prevail. During these years, Aruna, Rupa and Bhavani have touched the lives of many young talents in Ottawa.
and provided free school education to thousands of children in rural communities in India. Dr. Chandrasekhar's family, his wife and 2 children, have lighted the lives of many people in the Sri Kiran Eye Hospital in India. We both found inner peace in the pursuit of service. I heartfully thank all my friends in Ottawa. Truly, they are my strength and they are my life. Thank you, Canada, for remembering us. बहुत सारे विक्टिम्स अभी भी हैं जो अपनी बातचीत कर रहे हैं। और जब मैं ये विक्टिम कहता हूँ तो मैंने अभी पीछे कहा विक्टिम सिर्फ वही नहीं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, विक्टिम वो भी हैं जो जानें गंवा देने वालों की फैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, और हत्ता के विक्टिम्स हम सब कैनेडियंस हैं। हम सब इस दिन को ना भूलें बल्कि हर रोज़ इस दिन को याद रखें, क्योंकि ये दिन हम कैनेडियंस के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि ये एक तारीख दिन था और उस तरह का तारीख दिन कनाडा में फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। आज के शो में हमने याद किया एयर इंडिया बॉम्बिंग की उन तारीख दास्तानों को। आज के शो में हमने याद किया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और लॉ इन्फोर्समेंट के सरबराह, RCMP की सरबराह और बहुत सारे पॉलिटिशियंस और विक्टिम्स की फैमिलीज़ के कुछ लोगों को। आज के दिन हमने याद किया उस तारीख दिन को, इसलिए याद किया कि वो तारीख दिन फिर कभी कनाडा की हिस्ट्री में ना आ सके। आज का बिला तकल्लुफ़ तज़िया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे।